Alright, so in today's class we are going to start with ether preparation. Ether is basically referred as ROR group, that is, two alkyl groups are connected by one oxygen, referred as ether. So we are going to prepare this ether. So preparation of ether, the first one, that is from this RX. RX is referred as alkyl halide. So from RX we are taking two RX group. Along with that we are taking the reagent which is referred as Ag2O. Now this AgX will be removed. So removal of this AgX will lead rise to that ROR group. Along with that this AgX has been removed. So this is first method to prepare this ether. Then the second method of preparation of ether is referred by a process known as Williamson's synthesis. So the next one is referred as Williamson's synthesis. In the Williamson synthesis, we are again having this RONA. Okay, RONA is referred as a strong base, and in presence of this strong base, if we take this RX, that is being referred as अल्काइल हालाइड. तो अगर हम इसको यहाँ पर लेते हैं तब क्या होगा, तो ये ONA and this basically Na and this X will be removed. So removal of NaX and production of ROR dash, that is a ether. Along with that NaX will be removed from the system, and this is a strong base, and this is referred as a reaction. In this reaction, if we take a 3-degree alkyl halide, if this alkyl is 3-degree alkyl halide, then in that case instead of substitution the elimination will take place. So in that case the production will not be a ether, therefore that is not referred as a Williamson's synthesis. This is a SN2 mechanism. So we can write if this R-X group is 3-degree, then in that case E2 will take place, and if E2 take place, the production, that is the final product, will not be ether, therefore that is not referred as a Williamson's ether synthesis. Okay, moving on to the third reaction. In the third reaction we are having a dehydration reaction. So this is dehydration. Now in this dehydration reaction we are having alcohol, that is ROH. So this is an alcohol. In presence of another alcohol it can be same or different. So if it is in presence of another alcohol, if we supply the reagents, that is dehydrating agents, which is concentrated H2SO4 with a temperature of 140 degree Celsius, or we can also use Al2O3 along with a temperature which is 360 degree Celsius. तो in presence of these two reagents, ये अल्कोहल अगर इनके प्रेजेंस में होगा तब क्या होने वाला है, वाटर का रिमूवल. अब वाटर जाएगा, दिस H and this OH will be removed, therefore it will be production of RO R dash. Along with that water is getting removed from the system, therefore as the dehydration reaction. Okay. Similarly, the next one, that is also a dehydration only, but that is dehydration of glycols. So the fourth one, that is dehydration, but we are going to dehydrate glycol, and glycol is being referred as dihydric alcohol. मतलब एक सिंगल कंपाउंड में दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, एंड वी आर टेकिंग फॉर एग्जांपल इथिलीन ग्लाइकोल. So ethylene glycol presents in presence of another ethylene glycol, and when this is being done in presence of concentrated H3PO4, then simple water removal will take place. This H2O and this H2O will be removed, therefore we will be obtained with this product. So this is again a production of ether, and this compound, that is this product, is being referred as dioxane. So this is production of dioxane, which is a ether in this case. Okay. Similarly, moving to the next reaction or next preparation of ether reaction, that is the fifth one. Fifth one is the anisole formation. Okay. Anisole is also basically a ether, so we are going to form
anisole. So this is anisole formation reaction. In this anisole formation, we are having phenoxide ion with sodium attached with it. So this is phenoxide ion attached with sodium. Along with that, we are having RX group, which is ClCH3. Now this Na and Cl will be removed. तो removal कैसा होगा NaCl का, and then we will be obtaining the final product, which is being referred as anisole. Anisole is benzene ring attached to OCH3 group. Along with that, NaCl is getting removed from this reaction. So this is anisole preparation in this case. Okay. So this is the preparation of anisole, and this is nothing but a ether preparation. We can also prepare anisole by a different reaction, that is by using the phenol. So we are having this phenol. Along with that, we are having CH2 double bond N double bond N. This is a compound. Now in presence of this compound, this N2 is actually going to be removed. So if N2 gets removed, then we will be remained with CH2, which is a carbene. So phenol in a reaction with carbene, and carbene is referred as a electrophile. It has deficiency of electrons, therefore it has vacant orbital. And oxygen has lone pair, so its lone pair will be donated into the vacant orbital of this neutral electrophile, which is carbene. सो अगर ये होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, दैट इज ऑक्सीजन CH2, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू हाइड्रोजन विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन itself. Now this hydrogen will be moved to this place. Okay, so in that case it will be done, that is production of oxygen connected with CH3, which is preparation of anisole. So anisole can be formed by these two mechanisms. Similarly, the next reaction which we are having is referred as epoxide formation. Epoxide is also part of ether only. Okay, so next is formation of epoxide. So in the epoxide formation we will be taking a alkene. So alkene लेते हैं और per acid का use करते हैं. तो alkene we are having in presence of a per acid is RCO3H. So this is a per acid, and in presence of per acid, this alkene is going to be getting converted into epoxide. So this is because of the per acid. This is per acid means ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होगा, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज करता कि अपना ऑक्सीजन दूसरे कंपाउंड को डोनेट कर देता है. या तो ये रिएक्शन होता है पर एसिड के प्रेजेंस में, और दिस रिएक्शन कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ Ag इन प्रेजेंस विथ हीट. अलॉन्ग विद दैट वी आर टेकिंग और वी आर सप्लाइंग ऑक्सीजन. सो अगर ये सब कुछ भी सप्लाई करते हैं, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, एपॉक्साइड का ही प्रोडक्शन हो जाएगा. तो दिस इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन. हम कर क्या रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर. तो दिस इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एपॉक्साइड इन दिस केस. सिमिलरली द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस वॉज सिक्स्थ वन. सेवेंथ जो है दैट इज़ ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ ईथर, रेफर्ड एज अल्फा हेलो ईथर प्रिपरेशन. सो अल्फा hello ether. So alpha halo ether will be used to prepare a ether. Alpha halo ether है क्या, तो that is CH3, ऑक्सीजन कनेक्टेड है, CH2 है, और this is X. तो this is alpha, this is halo group connected है, and this is basically nothing but a ether. Alpha halo ether is taken with a Grignard reagent, तो RMgX. सो दिस इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हमने लिए तो ये X ग्रुप क्या करता है, MgX के साथ चला जाएगा और इसकी जगह पर ये R ग्रुप खुद को सब्स्टिट्यूट कर लेगा. तो यू विल बी गेटिंग दैट इज CH3O CH2 along with connection with R and with removal of this MgX2. So this is the formation, and this is being referred as a ether. Okay, so seventh one and the last and final eighth reaction which we are having is referred as Mozingo's method. So in this Mozingo method, what we are doing, that we are taking a carbonyl compound. Carbonyl compound means aldehyde या फिर ester हम लोग ले सकते हैं. तो we are taking either a aldehyde or a ester. So aldehyde ester in presence of a alcohol. Alcohol is ROH. So in presence of this ROH, or we can refer it as R-OH, this oxygen negative charge and hydrogen positive.
ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन पे अटैक कर सकता है एंड दिस बॉन्ड विल बी ओपनड. तब हमारे पास प्रोड्यूस क्या होगा? इन दैट केस वी विल बी गेटिंग RC oxygen with a minus charge, then there is R-OH with a positive charge on oxygen. So basically oxygen connected with R and hydrogen with a positive charge, then R and hydrogen is being connected. Now this hydrogen will shift, therefore it will lead to production of RC OH OR dash, then R and hydrogen is attached, which is referred as hemiacetal. So this is a hemiacetal that has been produced in here. अब hemiacetal होने के बाद अगर हम लोग फिर से अल्कोहल का अटैक करवाते हैं, so we are again taking this R-OH. अब R-OH में फिर से एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब ये पॉजिटिव करता क्या, इस ऑक्सीजन पे अटैक कर लेता है, यानी कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को ले जाता है, तो शिफ्टिंग ऑफ दिस प्रोटोन इज बीइंग हैपनिंग. अभी हो जाएगा RC, देन इससे कनेक्टेड है R ग्रुप हाइड्रोजन विच इज़ कनेक्टेड टू OR डैश एंड दिस इज OH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज बीइंग डन. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप में वाटर का रिमूवल हो सकता है. तो इन नेक्स्ट स्टेप दिस H2O इज गोइंग टू बी रिमूव्ड. अगर ये वाटर रिमूवल होता है तो बनेगा हमारे पास क्या, दैट इज़ RC, दिस इज़ R और हाइड्रोजन, दिस इज़ OR डैश ग्रुप एंड विद अ पॉजिटिव चार्ज. So this is the production of this carbocation in this case. तो यहाँ पर इस तरीके से इसका प्रोडक्शन हो गया. अब ये कि जैसे ही कार्बोकेटाइन बना है, अभी सिस्टम में क्या R-O माइनस प्रेजेंट है. तो इन द सिस्टम वी आर हैविंग दिस R-O माइनस. अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर लेगा, तो ये बना देगा RC R विथ हाइड्रोजन, देन OR डैश ग्रुप एंड OR डैश इज बीइंग अटैच्ड. So this is the referred as Mozingo's method by which we have produced a ether in this case. Okay. So there are total 8 methods of preparation of ether. 8 methods क्या थे? तो फर्स्ट था हमारे पास अल्काइल हैलाइड से Ag2O के साथ रिएक्शन. सेकेंड वन दैट इज़ विलियमसन्स सिंथेसिस, बट उसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज एलिमिनेशन होगा, बट वी वांट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देन था डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन में भी 2 चीज़ें थी. डिहाइड्रेशन पहले अल्कोहल का किया था, फिर ग्लाइकोल का. फिर उसके बाद था एनिसोल फॉर्मेशन. एनिसोल इज बेंजीन कनेक्टेड टू OCH3 ग्रुप रेफर्ड एज एनिसोल. Then we have done epoxide formation followed by alpha halo ether, and the last one is the Mozingo's method. So these are the preparation of ether which we have done. Next आ जाते हैं, that is regarding the reactions, that is reactions of this ether. Okay, so next is we are having reactions of ether. Reactions of ether में सबसे first जो है that is being referred as reaction due to the R group in the ether. So in this reaction categories we will be doing 3-4 category. First is being referred as reaction due to the R group which is present in ether. So the first category is a reaction due to the alkyl group which is present in the ether. The second reaction is referred as reaction due to ethereal oxygen. So reaction due to ethereal oxygen which is there in the ether. Then the next one, that is the third category of reaction. So the third category is referred as reaction due to carbon and oxygen. Reaction due to carbon and oxygen. And the fourth and the last one is referred as the miscellaneous reaction. So the last one, that is miscellaneous okay. So these are the 4 categories of reaction which we are going to do. अब इन सबको एक एक करके हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं कि ये सारे कैटेगरीज में होने क्या वाला है. तो सबसे पहला कैटेगरी है दैट इज़ रिएक्शन ड्यू टू R, कि R ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप होने की वजह से व्हाट आर द रिएक्शन विच विल बी डन. तो द फर्स्ट कैटेगरी में
देखिए फर्स्ट का पार्ट ए और वी कैन रेफर फर्स्ट का पार्ट 1 दैट इज बीइंग रेफर्ड एज हैलोजिनेशन. Halogenation में हम क्या करेंगे? We will be doing this reaction will happen due to this R group which is present in this ether. So in this case we are having that is a compound लेते हैं. Compound में हमारे पास CH3 then CH2 there is hydrogen let's say which is attached, then it is attached to oxygen, फिर है इस साइड CH hydrogen और यहाँ पर भी है CH3 group which is attached. Now we are taking chlorine. अब chlorine क्या करेगा? Chlorination. क्लोरीन यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन है तो अगर कोई ब्रोमीन होता तो ब्रोमिनेशन होता, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन. अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इनको हटाकर खुद ये क्लोरीन उसके पोजीशन को क्या करेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा. सो दिस इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन. क्लोरीन के अंदर होता क्या? तो Cl2 वी कैन रेफर इट एज ClCl. दिस HCl विल बी रिमूव्ड एंड वन Cl विल बी अटैच्ड एट इट्स पर्टिकुलर पोजीशन. सो इन दिस केस वी आर यूजिंग 2Cl2. Therefore the final compound which will be produced that is chlorine. This is also CH attached with chlorine, then CH3 and then HCl has been removed in this particular case. So this is being referred as alpha dash dichloro diethyl ether. So this is the name. यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, इसको अल्फ़ा बोल दो, दूसरे को अल्फ़ा डैश. तो अल्फ़ा डैश डाइक्लोरो डाइइथाइल ईथर इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. सो द फर्स्ट वन विच वी आर हैविंग इज द हैलोजिनेशन रिएक्शन. सो अगेन फर्स्ट में सेकेंड रिएक्शन दैट इज ड्यू टू द सनलाइट. in presence of the sunlight this reaction is going to happen. This halogenation only but in presence of sunlight. So let's say we are having this particular compound that is C2H5 oxygen C2H5 that is diethyl ether. We are taking in presence of chlorine and sunlight. So in sunlight this reaction is way faster and जितने भी हाइड्रोजन्स है उन सबको ये क्या कर देता है? क्लोरीन रिप्लेस कर देता है. तो we will be needing 10 of chlorine because we have to replace 10 of the hydrogens in this case. So these 10 hydrogens will be replaced. So we will be getting C2Cl5 oxygen and then C2Cl5. So all the hydrogens has been replaced by chlorine. Along with that we will be having HCl. So in presence of sunlight it will be halogenation only but all the hydrogens are going to be replaced in this particular case. So this is under reaction number 1, that is reaction due to the R group which is present in the ether. Now coming to the second part. In the second part that is reaction due to ethereal oxygen which we are having. सो इथेरल ऑक्सीजन मतलब ईथर में जो ऑक्सीजन है, ROR बोलते हैं, ROR में जो ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से ये रिएक्शन होगा. ठीक है. तो फर्स्ट रिएक्शन इन दिस केस और लेट्स से द रिएक्शन नंबर थर्ड दैट द सेकेंड वन दिस रिएक्शन दिस इज बीइंग रेफर्ड एज द रिएक्शन इन एयर. सो इन एयर वी आर हैविंग अगेन दिस डाइइथाइल ईथर. डाइइथाइल ईथर को अगर हम एयर के प्रेजेंस में डाल देते हैं. अब एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन रहता है. सो देयर इज़ ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन एयर और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है ईथर के पास जिसके पास क्या है? लोन पेयर है. तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ लुईस बेस क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है. ये दूसरा ऑक्सीजन जो है इट विल बी एक्टिंग एज अ लुईस एसिड क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन है. तो दिस इज़ अ लुईस एसिड, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. सो अब ये क्या करेगा? लुईस बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है लुईस एसिड को. तो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा C2H5 ऑक्सीजन. दिस विल बी कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड देन C2H5. तो दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट विल बी जनरेटेड विच इज़ रेफर्ड एज डाइइथाइल पेरोक्साइड. So this is diethyl peroxide. Okay. The next reaction which we are having that is reaction number 4th that is being referred as HBr. In presence of HBr this reaction will be taking place. So again we are having diethyl ether. So C2H5 oxygen C2H5 in presence of HBr. अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. ये लोन पेयर क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा.
अब जैसे ही इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ये क्या फॉर्म करने वाला है, दैट इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट. दिस इज़ अ एसिड, दिस इज़ एक्टिंग एज अ बेस. सो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट का प्रोडक्शन हो जाएगा. So C2H5 oxygen connected with hydrogen with a positive charge, then C2H5 and then Br minus will be there. So this is nothing a salt which has been produced in this particular case. Similarly, the fifth reaction, which is due to this cold and dilute H2SO4, and this is all happening because of the oxygen which is present in the ether. So this is all reaction due to the ethereal oxygen, that is second category. The fifth one, which is cold and dilute H2SO4 के presence में ये reaction होगा. So we are having a ether in cold and dilute H2SO4. अब H2SO4 का काम क्या, एसिड होता है यानी कि प्रोटोन डोनेट करेगा. तो we can write it like this, H plus HSO4 minus. अगेन ऑक्सीजन, ये लोन पेयर है, ये बेस के तरीके से एक्ट कर सकता है, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, फिर से क्या होगा, सॉल्ट का प्रोडक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो ये बना देगा RO R डैश, दिस इज हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज SO4 HSO4 माइनस दैट विल बी अटैच्ड इन हियर. So again this is a salt which has been produced in this case. Moving to the third category. Third category हमारे पास क्या था, that is reaction due to carbon and oxygen which is present in the ether. So in this case we are having the reaction that is action due to hot and concentrated H2SO4. तो इसके वजह से ये reaction होगा. अब इस केस में हमारे पास that is RO R dash, this is ether, concentrated H2SO4 that is H, we can write it like this H plus, ये क्या एसिड है तो प्रोटोन डोनेट करेगा, तो अगेन इसके पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये बना देगा अ सॉल्ट विच इज़ दिस वन. तो ये सॉल्ट हमारे पास क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर हम इसको हीट करते हैं, नाउ इफ़ वी सप्लाई हीट टू दिस वन, यहाँ पर क्या होगा, ये R डैश ये इस HSO4 माइनस के साथ चला जाएगा और ये ROH एक साथ रह जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ROH दैट इज़ अ अल्कोहल अलॉन्ग विद दैट R डैश HSO4 विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, सो दिस इज़ अ रिएक्शन विच इज़ हैपनिंग. नेक्स्ट इसी तरीके से एक और एग्जांपल करते हैं इसी का, जैसे RO है और यहाँ पर कोई बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप के साथ हम लोग ये रिएक्शन फिर से रिपीट करते हैं. तो दिस इज़ अ बल्की ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, तो ये क्या करेगा, ROH पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल एंड दिस इज HSO4 माइनस. तो अगेन दिस इज़ अ सॉल्ट. अब हम क्या करेंगे, तो अगेन वी आर गोइंग टू सप्लाई हीट टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. तो हीट जैसे ही सप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल बनेगा एंड विथ अल्कोहल वन ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप विल गो विथ द HSO4 माइनस. तो यहाँ पर होने वाला है दैट इज़ अ रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ हीट, यानी कि प्रोडक्शन हो जाएगा हमारे पास अल्कोहल का, और अल्कोहल के साथ कौन जाएगा, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप HSO4 माइनस के साथ चला जाएगा. तो दिस इज़ oxygen sulfur double bond O, and then we are having OH group which is attached to this one. So this is the same reaction which has been done, and this is again due to the presence of this hot and concentrated H2SO4. तो इस तरीके से ये reaction क्या होगा, यहाँ पर take place करेगा, and this is being referred as a SN1 reaction. SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हो क्या रहा है, एक हाइड्रोजन की जगह पर ये ब्यूटाइल ग्रुप अटैच हो जा रहा है, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इज बीइंग अटैच्ड. सिमिलरली नेक्स्ट आता है नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज इन द थर्ड कैटेगरी, दैट इज सेवेंथ रिएक्शन विच वी आर हैविंग इज रेफर्ड एज एक्शन ड्यू टू कोल्ड एंड डाइल्यूट HI. दिस इज एक्शन ड्यू टू कोल्ड एंड डाइल्यूट हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम लेते हैं अपना ईथर विथ HI. नाउ दिस ईथर अगेन हैज़ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन को लेगा, आयोडीन मूव करेगा, तो ये बन जाएगा ROH विथ अ पॉजिटिव चार्ज R डैश, और क्या रहेगा I माइनस अगेन होगा.
अब ये होता है SN2 रिएक्शन कि दिस रिएक्शन विल बी अंडरगोइंग बाय अ SN2 मैकेनिज्म। SN2 में फिर से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि R डैश ग्रुप I के साथ चला जाएगा, यानी कि ये बना जाएगा ROH, अलॉन्ग विद दैट वी विल गेटिंग R डैश I ग्रुप। तो एक अल्काइल हैलाइड का प्रोडक्शन विद अ अल्कोहल हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज द रिएक्शन और द एक्शन ड्यू टू हॉट एंड concentrated HI। तो नेक्स्ट केस में it is action due to hot and concentrated HI। तो this reaction is there। तो we are having again ROR dash group along with that HI। So again oxygen lone pair attack on the hydrogen production of this salt has been happening। अब यहाँ पर फिर से क्या है, I माइनस प्रेजेंट है। I माइनस पहले से यहाँ पर अगर है, अब ये I माइनस क्या कर सकते हैं, तो ये I माइनस हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, काफ़ी रिएक्टिव है, तो ये एक को ले जाएगा और इसके साथ ये ग्रुप क्या करेगा, लीव करेगा। तो दिस इज RI along with that R dash OH has been produced। Now this is again in presence of HI। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये फिर से हाइड्रोजन को ले लेगा, ये बना देगा R dash OH2 with a positive charge। Then this H2O will leave and we are having I minus in the system, so it will be R dash I, यानी कि दोनों ही अल्काइल हैलाइड ही बनेंगे। दिस इज़ द अल्काइल हैलाइड और फाइनली दोबारा क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड बन गया। तो दोनों अल्काइल हैलाइड के साथ कब चले जाते हैं, जब ये रिएक्शन होता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ होगा तो SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एक अल्कोहल बनेगा और दूसरा अल्काइल हैलाइड का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज़ 9th रिएक्शन, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ PCl5 phosphorus pentachloride। तो दिस इज़ ROR डैश, वी आर हैविंग PCl5। अब PCl5 के साथ है क्लोरीनेटिंग एजेंट है, मतलब ये क्लोरीन क्या करेगा, सिस्टम में ऐड करेगा। देयरफॉर इट बिकम्स RCl अलॉन्ग विद दैट R डैश Cl और उसके साथ हो जाता है P डबल बॉन्ड O एंड 3Cl ग्रुप, तो POCl3 का प्रोडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन नंबर 10, दैट इज एक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड में वी आर हैविंग दिस ROR डैश ग्रुप with acetyl chloride which is referred as CH3 C double bond O Cl। acetyl chloride is that। अब एसिटाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन अगर होता है तो ये OR डैश ग्रुप ये क्लोरीन के साथ चला जा सकता है, या फिर ये OR डैश ग्रुप क्या हो जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ जाए और ये क्लोरीन इस R ग्रुप से अटैच हो जाए। So it is formation of this RCl along with that we are having R dash O which is undergoing with this acetyl group। So this is the production of this compound। Again a alkyl halide has been produced in this particular case। Similarly moving to the next reaction, next is reaction number 11। In this reaction, this is the reaction with एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या होगा, तो अगेन वी आर हैविंग ईथर विथ एसिटिक एनहाइड्राइड विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3 ग्रुप इज देयर। अब यहाँ पर हो जाएगा दैट इज़ एक बार इसके साथ एक R ग्रुप चला जाए और इसके साथ क्या होगा, ये OR डैश चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनाता है हमारे पास प्रोडक्ट विच इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O OR, एस्टर का प्रोडक्शन हो रहा है एंड अनदर वन है CH3 C डबल बॉन्ड O विथ R डैश। सो इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एस्टर थ्रू ईथर by use of a reagent which is acetic anhydride in this particular case। So this is the reaction। Now the fourth category which we have referred as miscellaneous reaction। So in this miscellaneous reaction we are having the first, then reaction wise 12th reaction, it is referred as action with steam। कि steam के साथ ये reaction होगा। स्टीम के साथ अगर ये रिएक्शन होता है तो अगेन वी आर हैविंग दिस ईथर।
ईथर को जैसे ही हम लोग वाटर में ऐड करेंगे ये क्या करता है, अल्कोहल बना देता है. तो इन दिस केस अल्कोहल विल बी प्रोड्यूस्ड. So this is production of alcohol. Next is oxidation reaction, that is oxidation of this ether. Ether में हमारे पास है CH3 CH2 then oxygen CH2 CH3. Now ether अगर ऐड कर रहे हैं, ether में का oxidation कराना है तो we are using KMnO4 which is a oxidizing agent. In the presence of this oxidizing agent, this ether is oxidized to a acid which is being in this case referred as acetic acid का production हो जाएगा. तो this is acetic acid that will be produced by use of this KMnO4. 14th, that is being referred as dehydration reaction. Dehydration from this ether. So we are having this diethyl ether which is CH2 oxygen then CH2 CH3. So this is the compound. Now it is done in the presence of concentrated H2SO4. So अगर हम concentrated H2SO4 लेते हैं at a temperature which is 140 degrees Celsius, or we can use Al2O3 at a temperature of 350 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन है मतलब पानी निकालना, तो सिस्टम से वाटर का रिमूवल हो जाएगा. तो वाटर विल बी रिमूव्ड एंड व्हेन दिस वाटर विल बी रिमूव्ड यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में बनेगा, एक डबल बॉन्ड इधर बनेगा. तो एल्कीन विल बी प्रोड्यूस्ड दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. Along with that water is getting removed from this system. This is dehydration reaction. Moving on to the next one, that is 15th reaction of this ether. The 15th is referred as epoxide ring opening reaction. epoxide है उसका हम क्या करने वाले हैं, रिंग ओपन करने वाले. तो epoxide ring opening reaction. अब एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में हमारे पास एपॉक्साइड होना चाहिए, उसका रिंग ओपन करना मतलब उसका हमें क्या करना है, उसका जो 3 मेंबर रिंग होता है इट हैज़ टू बी ओपन इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिड और अ बेस. यानी कि ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन, सेकेंड इज बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास दैट इज एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ दिस एपॉक्साइड. अब एसिड कैटालाइज का मतलब क्या, वी आर गोइंग टू यूज़ अ एसिड. तो लेट्स टेक अ एपॉक्साइड एंड वी आर टेकिंग अ एसिड दैट इज H2SO4. H2SO4 के साथ हमें H2SO4 करेगा क्या, तो कंपाउंड में सप्लाई करेगा हाइड्रोजन का एंड इट इज़ टेकन इन अ पोलर सॉल्वेंट. तो दिस इज अ पोलर सॉल्वेंट इन विच वी आर टेकिंग दिस H2SO4. अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लेगा प्रोटोन को दैट विल बी सप्लाइड फ्रॉम दिस एसिड. तो ये वाला प्रोटोन को ले लेगा, तो यहाँ पर बना देगा दैट इज ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन विथ अ पॉजिटिव चार्ज. अब नेक्स्ट स्टेप में ये रिंग यहाँ पर क्या हो जाता है, ओपन हो जाएगा. अब किस साइड ओपन होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा वहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, दूसरे साइड OH ग्रुप. यानी कि इस साइड से अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज इज़ क्वाइट स्टेबल, और दूसरे साइड OH ग्रुप का अटैचमेंट. नेक्स्ट हमारे पास था सॉल्वेंट दैट इज़ CH3OH. अगर हमने ये लिया है अल्कोहल है, सो CH3OH में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, देयरफॉर इट विल बी प्रोड्यूसिंग OCH3 in here. Along with that next carbon is connected with a OH group. So this is a SN1 reaction. SN1 में ये मूव करता है, ये क्या है, ऑक्सीजन अटैक कर रहा है इस कार्बोकैटायन के ऊपर. कार्बोकैटायन हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड इट इज़ रेफर्ड एज अ SN1 रिएक्शन. सेकेंड इज रेफर्ड एज अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, की बेस के प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग विल बी डन एंड दिस रिएक्शन इज रिजेम्बलेंस ऑफ SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन. तो resembles SN2 टाइप रिएक्शन. अब SN2 में हमारे पास फिर से वी आर टेकिंग दिस एपॉक्साइड. SN2 का मतलब क्या होता है, वन स्टेप मैकेनिज्म.
डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है. तो इन दिस केस वी आर हैविंग NaOH विथ अ अल्कोहल दैट इज CH3OH. अब यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ CH3ONa विच इज़ बीइंग रेफर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. अब ये जैसे ही प्रोड्यूस होता है इट इज़ हैविंग O-Na+. O- यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, ठीक है. ये जैसे ही ओपन होगा हाइड्रोजन वहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. सो इट विल बी दैट इज़ दिस कार्बन इज़ देयर, कार्बन है उससे अटैच्ड है 2 ग्रुप. इस साइड यहाँ पर अटैच हुआ है OCH3 एंड दिस इज OH that has been attached. So this is being referred as a SN2 mechanism. डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब SN2 का रिजेम्बलेंस है. SN1 होता तो कार्बोकैटायन बनता, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. देन उसके बाद फिर प्रोडक्ट आएगा. कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो सकता है इफ़ पॉसिबल. देन रीअरेंजमेंट होगा, फिर उसके बाद CH3OH अटैक करेगा, यानी कि ऑक्सीजन का लोन पेयर विल बी अटैकिंग. 16th for ether which is referred as anti-hydroxylation reaction. Anti-hydroxylation reaction which happens, that is यहाँ पर होता है acid and water, that is hydrolysis. So acid hydrolysis referred as anti-hydroxylation reaction. So in this case again we are having this epoxide group. So this is a epoxide in presence of a acid that is H+. तो ये अटैक करेगा यहाँ पर acid that is H, हाइड्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज. वाटर है, वाटर के पास होता है लोन पेयर, ये एक एंड पे अटैक करेगा, ये रिंग क्या होगा, ओपन हो जाएगा. जैसे ही ओपन होगा इट विल बी फॉर्मिंग, दिस इज वी आर हैविंग दिस OH. अनदर साइड से OH2+ हैज़ बिन अटैकिंग, देयरफॉर इट विल लेड टू द प्रोडक्शन. अब इसके पास H2O+ है, फिर से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा. देयरफॉर हमारे पास बन जाएगा OH एंड OH, दैट इज OH अटैचमेंट एट द एंटी पोजिशन. सो दिस इज अ एंटी रिएक्शन. सिमिलरली एक और कर सकते हैं. लेट्स से वी आर हैविंग दिस कंपाउंड, इसमें भी ऑक्सीजन अटैच्ड है. वी आर हैविंग H+ विथ H2. अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें पता है वो ऑक्सीजन यानी कि एपॉक्साइड का ऑक्सीजन हट के OH ग्रुप पाएगा और एंटी अटैक होगा. एंटी मीन्स वन ऑफ द OH विल बी अबव द प्लेन, अनदर OH विल बी अटैच्ड बिलो द प्लेन. रेफर्ड एज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है. नाम में ही क्या है, एंटी लगा हुआ है, मतलब अपोजिट साइड से OH ग्रुप का अटैचमेंट होगा. एंड द लास्ट एंड द फाइनल वन रेफर्ड एज हॉफमान एग्जॉस्टिव alkylation reaction. A Hofmann exhaustive alkylation reaction. In this case we are having a nitrogen containing compound. The nitrogen compound we are adding RCl which is CH3Cl. अब ये जैसे ही अटैच करते हैं तब यहाँ पर होने क्या वाला है, in this case we are having दिस RCl वो अटैक करेगा. RCl अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर से CH3 अटैच होगा, Cl बाहर रहेगा. देयरफॉर इट विल बी प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन एंड CH3 विथ अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन Cl- विल बी देयर. अब Cl- करेगा क्या, शांति से तो बैठेगा नहीं, ये हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, ये रिंग मूव करेगा. देयरफॉर इन दैट केस it will be forming, as hydrogen is there, this is the positive charge which will be produced in here. ये ऐसे ही यहाँ पर होगा. अब इसको होने के बाद ये रिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन करेगा. रिंग जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन, उससे कनेक्ट होगा हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप. नाउ दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन किसके साथ जा रहा है, रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो इट विल बी अ डबल बॉन्ड ग्रुप. नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है. अगेन अगर हम इसमें RCl अटैच करते हैं, दैट इज CH3Cl अटैचमेंट करते हैं, फिर से नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है तो CH3 पर अटैच करेगा, Cl रिमूव होगा. फिर से यहाँ पर नाइट्रोजन
हाइड्रोजन CH3, एक और CH3 ग्रुप आएगा, फिर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेना चाहेगा और जैसे ही लेना चाहेगा ये बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ इन दिस केस डबल बॉन्ड इज़ देयर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज विथ हाइड्रोजन एंड दिस होल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विल बी रिमूव्ड, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस ऑफ नाइट्रोजन विथ 2 CH3 group along with that hydrogen will be connected and in the final step this proton will be removed, तब यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा एल्कीन। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एल्कीन इन दिस केस। तो एल्कीन विथ प्रोडक्शन ऑफ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड referred as Hofmann exhaustive alkylation reaction, ठीक है। सो विद दिस वी हैव completed द होल ईथर पार्ट। ईथर के जितने भी रिएक्शंस थे, जो भी प्रिपरेशन के मेथड्स थे, वो हमने यहाँ पर क्या किए, कंप्लीट कर लिए।